ڈرگس یعنی کہ آپ ایسا کوئی نشہ کریں، منشیات ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے این جی اوز کو اور ہماری گورنمنٹ کو کولیبریٹ کر کے اس کی کیمپینز کرنی چاہیے، جو ہوتی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی. بہت جگہ جا کے اس کی کیمپین کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے کہ اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ بیٹھیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے. دیکھیں ایج کوئی نہیں ہے، بچہ 8 سال کا بھی کر رہا ہے وچ از ویری شاکنگ، اور ایک بڑی عمر کا آدمی بھی کر رہا ہے جو ایک دم سے جو ہے اس ڈائریکشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اس پہ ہم بات کریں. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے خالق انصاری نے، جو کہ سن شائن ریہیبلیٹیشن سینٹر کے سی او ہیں. تمغہ امتیاز بھی ان کو ملا ہوا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو بہت مبارک آپ کو کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اور کتنے سینٹرز ہیں آپ کے؟ میرے اس وقت 5 سینٹر ہو گئے ہیں. میں نے ایک سینٹر سے شروع کیا تھا جو کہ اورنگی ٹاؤن میں ہے. وہاں پر میں نے صرف 5 آدمی رکھے تھے، پھر 5 آدمی کو ٹھیک کر کے پھر ان سے ہی 5 آدمی منگوائے. اچھا. ہاں، پھر ان سے وہ جب 10 ہو گئے تو پھر ان سے 20 آدمی، اس طرح ہوتے ہوتے تقریباً 150 آدمی ایک سینٹر میں. ویری گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں خالق صاحب کہ یہ جو ریہیب میں آتے ہیں کس قسم کے زیادہ جو نشے کا آپ دیکھ رہے ہیں، ریشو کس نشے کا زیادہ ہے؟ زیادہ تر آئس کا ہے. آئس کیونکہ اویلیبلٹی بہت ہے، سستا ہے. پھر اس کے بعد کرسٹال ہے، ہیروئن ہے. کرسٹلز جو ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، وہ دانے کی طرح جی سمجھ گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوکین ہے. اور نشے تو ہیروئن ہے، چرس ہے. سر یہ کبھی یہ روٹ کاز نظر آئی کہ اویلیبلٹی کیسے ہو رہی ہے، کہاں سے یہ لوگ کیسے اویلیبل کر رہے ہیں؟ یہ اب تو اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ نظر نہیں آتا، جو پینے والا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس بیچنے والے سے لے لیتا ہے اور پھر آگے بانٹتا ہے. اور آپس میں جب وہ کچرا کنڈی جیسی ہوتی ہے نا، یہ وہاں پر ہی پائے جاتے ہیں. اب یہ وہاں پر جو ہے نا ایک دوسرے کو بیچتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، اسی میں سے جو 2 ٹوکن بچتے ہیں وہ خود پیتے ہیں، اور پھر وہ جو پیسے ملتے ہیں تو پھر وہ جا کر اس کو دیتے ہیں. ہم کوئی پکڑ نہیں سکتی، پولیس ان کو پکڑ نہیں سکتی. اچھا. یعنی اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے. ریہیب میں جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ نے کہا اپنے لوگوں کو ٹھیک کیا، ریہیب کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ یہ جب شروع میں آتے ہیں ہم تو جو ولنگ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں ان کو، اور وہ جب داخل کراتے ہیں تو اس وقت وہ ان کی بڑی بری حالت ہوتی ہے. تو جو ڈیٹاکس وارڈ ہے ہمارے پاس، تو ہم اس میں رکھا جاتا ہے ان کو. تو وہاں سے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ نئے بندے پہ تو حملہ کر دیتے ہیں، یعنی سلاخیں توڑتے ہیں، یعنی انہیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھو کہ اپنے آپ میں نہیں ہوتے. بھوک تو ان کو لگتی نہیں ہے، وہ تو نشے پہ ہی گزارا کرتے ہیں. تو جب وہ ان کا تقریباً 4 دن کا تو ہم توڑ کہتے ہیں دوسری لفظوں میں، ڈیٹاکس میں جی توڑ ہوتا ہے. 4 دن جو ہے نا وہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ منہ سے جھاگ نکلنا، موشن لگ جانا، آنکھوں سے پانی شروع ہو جانا، یعنی ایسی بری حالت ہوتی ہے. ایسے وڈرالز ہیں. اور اتنی خراب کنڈیشن ان کی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس یہاں سے ہم بھاگ جائیں. بالکل. اور وہ پھر حملہ بھی کرتے ہیں. اب ہم ان میں جو ہے نا ہم ریکوری کو رکھتے ہیں، جو ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم اسی کو رکھتے ہیں، کیونکہ وہی توڑ ان کا جانتا ہے، وہ بتا سکتا ہے بہتر. ہاں، وہ اس کو تسلی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو جا نہیں سکتا، تو نے یہی رہنا ہے، تو صبر کر لے. تو وہ جب صبر کرتا ہے تو اس کو ہم میڈیسن بھی دے دیتے ہیں، میتھاڈون یا ولیوم 10، تاکہ اس کا وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے. صحیح. آپ بات کریں اس کانورزیشن کے درمیان، میں ڈاکٹر صاحب یہ سوچ رہی ہوں بسم اللہ کہ ہم کتنی مرادوں سے بچے کو مانگتے ہیں اللہ سے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹا دے یا بیٹی دے. آج کل تو خیر بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، بچیاں بھی ریہیب جاتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا ہے. صرف میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ان ماں باپ کی کیا کیفیت ہوگی اور کس طرح وہ اس چیز کو ڈیل کرتے ہوں گے. اتنی بری کیفیت ہوتی ہے کبھی کبھی جب ماں باپ لے کر آتے ہیں نا،
because I have also worked in I rehabilitation know you centers. have, yes. So उसमें तो आपको उन पे तरस आ रहा होता है कि भाई उनके पास ना भी वसाइल हों, वो कहीं से पैसे इकट्ठे करके लेकर आते हैं कि प्लीज़ इनका इलाज कर दें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बच्चे को देखा नहीं जाता माँ बाप से बिल्कुल भी। उसके अंदर पे ये होता है कि जब एक तकलीफ से जब बच्चा गुजर रहा होता है, फिर मिलने की भी उस तरह इजाज़त नहीं होती, तो माँ बाप के ऊपर ना देख सकते, तो माँ बाप भी, एक बच्चा तो क्राइसिस से गुजर ही रहा होता है, लेकिन उसके साथ में रहने वाले भी उतने ही क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, ज़्यादा क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। देखिए अगर वो रिहैब जा रहा है तो ज़ाहिर उसका ख़र्चा पानी भी करना है, सब कुछ करना है। एक तो पहले ही फैमिलीज़, अच्छा जो हम बार बार ये भी सोचते हैं ना कि ये सिर्फ स्लम्स में हो रहा है डॉक्टर साहब, या ये इतनी एलीट फैमिलीज़ में हो रहा है और उनको रिहैब भेजा जाता है। कल ही हम ये बात कर रहे थे कि कुछ लोग ये समझते हैं कि शादी कर दोगे तो रिहैबिलिटेशन हो जाएगी। अब वो जो एक मेरे मुंह से तो यही निकलेगा, एक मंशियात कंज्यूमर है जो ड्रगी है, वो तो बाद में भी उसके विड्रॉल्स होंगे और वो वही रिएक्शंस देगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप मेडिसिन देते हैं, आपको पता है कि इस बच्चे को या इस बच्ची को इस तरह ठीक करना है, अब आपको कहाँ लगता है कि मेडिसिन आर नॉट वर्किंग, सो फिर यू रेकमेंड कि वो रिहैब जाए, वो कौन सी स्टेज है? देखिए, जब शुरू में पेशेंट आता है और नशा कर रहा है तो ही डेफिनेटली नीड अ डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड ऑफ अराउंड 7 to 14 days। अच्छा, उसमें ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन के वो ड्रग्स क्या ले रहा है, चर्स है, एम्फेटामीन्स हैं, तो उसमें ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, फिज़िकल डिपेंडेंस कम है, उसके विड्रॉल्स फिज़िकल इतने नहीं होते। जहाँ कोकेन है, हेरोइन है, ओपिएट बेस्ड ड्रग्स हैं, उनके विड्रॉल्स ज़्यादा हैं, सीवियर फिज़िकल विड्रॉल ज़्यादा हैं, और उसी में मोर्टेलिटी का रिस्क, जिसमें मरने का रिस्क होता है, ज़्यादा भी होता है। तो उसमें लंबे अरसे का डिटॉक्स देना पड़ता है, जिसमें दवाइयाँ मस्ट हैं। पिल्स भी आ जाती हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं रेव्स हो रही हैं, और ये जो बच्चों को बुलाया जाता है रेव पार्टी है, उसमें जो पिल्स दी जा रही हैं, दैट इज स्पीड एम्फेटामीन बेसिकली, वो स्टिमुलेट करती है एंड दैट गिव्स यू दैट एनर्जी टू डांस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन यू जस्ट गो इन दैट अदर जोन। एग्जैक्टली। तो एंड अगर ड्रग्स आर डाउनर्स और अपर्स बेसिकली, जिस तरह से हम कहते हैं, कुछ आपको बहुत स्टिमुलेट कर देती है, कुछ आपको बिल्कुल डाउनर में ले जाती है, जाती है, रिलैक्स कर देती है, एंड तो होता ये है कि डेफिनेटली। और फिर दो तरह के पेशेंट हैं ओवरऑल देखा जाए। एक ऐसा होता है जो शायद अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आ रहा है, जो कंसेंट कर सकता है, कह सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, जो जिसकी आप फिर भी थोड़े बहुत मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कर सकते हैं कि उसको वो कितना मोटिवेटेड है कि नहीं है। एक वो है जो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस के साथ आ रहा है, जिसको न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, दिमाग के केमिकल्स इतने ज़्यादा बैलेंस आउट हो चुका है, सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन, कि आपको दवाइयाँ देनी है, क्योंकि वो साइकोसिस भी चला गया, वो पैरानोया है, उसको लगता है लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे खिलाफ है, उसको कानों में आवाज़ें आ रही हैं, उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं, विजुअल ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रही हैं, तो hallucinations होने you can't even ask him भाई आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स लेके आ रहा है, कोई फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त या नेबर, तो यू हैव टू कीप देम। और डिटॉक्स से गुजरता है, साथ में एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं और दूसरी दवाइयाँ दी जाती हैं, ताकि उनके इमोशंस, बिहेवियर, थॉट्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हों। उसके बाद देन वी नीड साइकोलॉजिकल असेसमेंट कि अब जो है वो डिटॉक्स से गुजर गया, विड्रॉल्स नहीं हैं, हाँ, फिर उसको मोटिवेट करना, उसको उस इन्वायरमेंट से निकालना जिसमें वो था, वो स्ट्रैटेजीज़ देना, उसकी फंक्शनिंग को बेहतर करना, उसको प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना, उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना, ये फिर रिहैब का डॉक्टर साहब, अगर वो मेडिसिन ले रहा है और मेडिसिन का आदी बनता जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जब एक साइकाइट्रिस्ट जो होता है, वो जो मेडिसिन दे रहा होता है उसको टेपर डाउन करना शुरू कर देता है। Exactly. लेकिन कुछ लोग उस दवाई को बस समझते हैं कि बस इसी से मुझे आराम आ रहा है, तो वो दवाइयाँ फकने लग जाते हैं। एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक आवर सिस्टम जो है ना, हमारा सिस्टम पाकिस्तान में वो फॉल्ट में है, क्योंकि अगर आपने एक दवाई प्रिस्क्राइब कर दी और उसको आराम आ गया और फिर वो डॉक्टर के पास नहीं आया और फिर कहीं से जाके खुद दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, तो फिर एक एडिक्शन से निकल के वो दूसरे एडिक्शन में एंटर हो जाते हैं। आई थिंक इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने कही थी कि प्रिस्क्रिप्शन की डेट देख लें कि कब दिया था, वो प्रिस्क्राइब किया था, और जब तक डॉक्टर का पर्चा ना देखें तब तक दवाई ना दें। अब जब ये रिहैब का जो आपका टाइम पीरियड है, ये कितना है, ये वेरी करता है? आपने कहा एक बच्चे हैं छोटे जिनको आपने अलग रखा हुआ है, उसके बारे में प्लीज़ बताएं। अच्छा, इसमें ये हमारा तो जो पीरियड है तकरीबन 21 दिन के बाद हम मुलाकात कराते हैं, 21 दिन से पहले नहीं कराते, और 3 महीने का ये पूरा प्रोसीजर है।
और इंटरनेशनली तौर पे देखा जाए तो ये 22 महीने का पीरियड है 22 जब महीने जाकर ये ठीक होता है। लेकिन 22 महीने वो मिलने ही नहीं देते? ये बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाहर जैसे की, यहाँ US की नहीं। यहाँ आप लोग पर जो है 21 हम दिन नहीं मिलने देते। 3 महीने तक जो है वो हमारे पास रहता है और 21 दिन तक हम मिलने नहीं देते। हाँ। उसकी वजह ये है कि जब ये अपनी डिटॉक्स से निकलता है 6-7 दिन में, उसके बाद इसको भूख लगती है। इसको भूख लगती है और ये भूख में 4 आदमी का खाना खा जाता, 5 आदमी का खा जाता है और फिर इसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और तो फिर उसके लिए हम लौकी का पानी देते हैं, गरारे कराते हैं, तो उससे इनका ये जो बेहतर हो जाता है। बेहतर हो जाता है। फिर ये खाना मांगता है क्योंकि इसको होश तो होता नहीं है, 4-5 दिन तक तो खाना ही नहीं मांगता, उसमें पड़ा होता है तोड़ में। तो उसके बाद जब ये खाना मांगता है तो 5-6 आदमी का एक आदमी खा जाता है। फिर इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो ये रोटी ज़्यादा ही मांगता है। जब ये अपनी हालत में आता है, अच्छा मेरा एक ये यूनिक इलाज भी है कि मैं ज़्यादातर मेडिसिन पे इनको नहीं लेके जाता। ठीक है। इनको जो है बाद में आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन छुड़वा देता हूँ। मेरा ख्याल है 1 महीने में तो ये ऐसे हो जाते हैं कि इनके चेहरे पे सुर्खी आनी शुरू होती है। अच्छा, खाना मैं इनको बहुत अच्छा देता हूँ, वेरी गुड। खाना इनको जितना अच्छा देता हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपकी फंडिंग, आप फंड्स कैसे एलोकेट करते हैं? देखें, मैंने जब शुरू किया था ना तो मुझे नहीं पता था, मुझे एक ये तरस आया था। और मैं ये पूछ सकती हूँ खालिक साहब कि ये आपने शुरू क्यों किया था? क्या आपकी कोई फैमिली में ऐसा था या आपके कोई रिलेटिव हैं? एक चीज़ तो ये थी कि मैंने एक अच्छा, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे खालिक साहब, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा नेक काम शुरू करते हैं किसी को हेल्प आउट करने के लिए, उसकी कोई स्टोरी तो ज़रूर होती है, तो वो भी हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।